السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے بالکل نئی سٹوری جو آج سے شروع ہو رہی ہے، کالی آتما بائی M.A. راحت، ایپیسوڈ نمبر 1۔ امبالہ کھلے علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ آسمان پر کالے بادلوں کے گول اکٹھے ہو رہے تھے اور اندھیرا روشنی کو نگلتا جا رہا تھا۔ امبالہ نے کئی بار نگاہیں اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور اس کے دوڑنے کی رفتار خود بخود تیز ہوتی گئی۔ آگے گھنے جنگل تھے جہاں خونخوار درندے گھومتے پھرتے تھے۔ رات کے سفر میں جلانے والی چیز درندوں کو دور رکھتی ہے، لیکن اگر پانی بہنے لگا تو آگ روشن نہیں ہو سکے گی اور درندے آسانی سے اسے ہڑپ کر لیں گے۔ پانی کے پہلے قطرے نے اس کی ناک کو چھوا تو اس کی رفتار طوفانی ہونے لگی۔ جنگل بالکل سامنے آ گیا تھا۔ وہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ درختوں کے درمیان دوڑتے ہوئے وہ چاروں طرف نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے اندر خوف کی بجائے پریشانی پل رہی تھی۔ روشنی ختم ہو گئی تو لکڑی کے بھالے سے وہ کتنے درندے شکار کر سکے گا؟ کہیں دور سے ہاتھی کی چنگھار ابھری تو اس کے قدم رکے۔ اس نے آواز کی سمت کا اندازہ کیا اور رخ بدل کر مزید تیزی سے دوڑنے لگا۔ پھر اچانک جنگل ختم ہو گیا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ بارش نے کوئی باقاعدہ شکل نہیں اختیار کی، بس کھلی کھلی بوندیں آ رہی تھی۔ تا حد نگاہ میدان بکھرا ہوا تھا جس میں کہیں کہیں اونچے ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ امبالہ کو کسی قدر سکون ہوا اور وہ پرسکون ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ اپنے قبیلے کا سب سے دلیر نوجوان تھا اور قبیلہ سارگانہ کے لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے وجود میں مقدس روحوں کا بسیرا ہے۔ وہ بے حد طاقتور، بے حد ذہین ہے اور ہمارے علاقے میں اسے مستقبل کا کاہن اعظم منتخب کر لیا جائے گا۔ دور دور کے قبیلوں میں اس کی دھوم مچی ہوئی تھی اور سارگانہ والے اس پر فخر کیا کرتے تھے اور مستقبل میں اس کے سردار اور کاہن اعظم بن جانے کی دعائیں کرتے تھے۔ بات صرف امبالہ کی ہی نہیں تھی، امبالہ کا باپ ہونا بھی اتنا ہی ذہین اور دلیر انسان تھا۔ اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہونا کی خوبیاں ہی امبالہ کے اندر پیدا ہوئی تھیں، کیونکہ امبالہ نے اپنے باپ کو ذبح کر کے سارے کا سارا کھا لیا تھا، اور جب کئی دن تک ہونا منظر عام پر نہیں آیا تھا تو لوگوں نے امبالہ سے اس کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ تب امبالہ نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے باپ کی لاش اپنے جھونپڑے سے باہر نکالی، جس کے پنجر میں اب بس کہیں کہیں گوشت باقی رہ گیا تھا جو سڑنے لگا تھا۔ تب امبالہ نے بتایا، لوگوں، میرے باپ جیسی خوبیاں قبیلہ سارگانہ میں کسی اور کے اندر نہیں تھیں۔ میں اس کی طبی موت کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں اپنے آپ کو آخری حد تک طاقتور اور ذہین بنانا چاہتا تھا۔ سو اب اس بات کا یقین کر لو کہ ہونا کی ساری صفات میرے اندر سما گئی ہیں۔ میں نے اس کا دل نکال کر چبایا ہے۔ بھلا تم ہی بتاؤ کہ اس جیسا دلیر پورے قبیلے میں اور تھا؟ اور وہ جس نے ہاتھی کی سونڈ اس کی جگہ سے اکھیڑ دی تھی، میں نے اس کی آنکھیں نکال کر کھائیں، کیونکہ یہ وہی تھا جو میلوں دور دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اس کا دماغ اپنے معدے میں اتارا کہ اس کی ذہانت میرے اندر منتقل ہو جائے۔ قبیلے والوں نے خوشیوں کے نعرے لگا لگا کر امبالہ کو اس کی فراست کی داد دی تھی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز کھا لے جو اسے دلیر بنا دے تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کوئی شیر کا شکار کر کے شیر کا دل کھا لے تو وہ شیر کی طرح دلیر ہوتا ہے۔ سارگانہ کے لوگ اپنے مردوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن اس حالت میں کہ اس کے جسم پر گوشت کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی تھی، اور اس طرح وہ اپنی محبتوں کو اپنے وجود میں اتار لیا کرتے تھے۔ ان کا یہی عقیدہ تھا کہ جو کچھ کھاؤ گے وہی صفات تمہارے اندر پیدا ہوں گے۔ اگر کسی نے لومڑی کا گوشت کھا لیا تو وہ لومڑی کی طرح چالاک بن گیا۔ لہذا بستی کے کسی بھی مدبر کی موت پورے سارگانہ قبیلے کے لیے بڑی عقیدت کا باعث ہوتی تھی۔
मरने वाली की बोटी बोटी तबरक के तौर पर सबसे पहले बड़े लोगों में तकसीम की जाती और उसके बाद हड्डियां और उसके निचले दर्जे के लोगों में बांट दी जाती और वो उन्हें चूसते और भंबोड़ते रहते। किसी एक शख्स के बदन का गोश्त या हड्डियां इतनी ज़्यादा नहीं होती कि पूरे कबीले में तकसीम हो सके। बहरहाल ये सब काम तबरक के तौर पर हुआ करते थे और अगर कोई किसी जिंदा वजूद को खाए तो उसकी तो बड़ी अहमियत हुआ करती थी। अम्बाला ने भी अपने बाप होना को बड़ी चालाकी से ज़ाहिर किया था। ये बात अम्बाला के जहन में बहुत अरसे से परवान चढ़ रही थी कि उसके बाप होना की तारीफ़ों के हर जगह पुल बांधे जाते हैं। लोग कहते हैं कि होना से ज़्यादा ज़हीन और कोई नहीं। लोग कहते थे कि होना शेर से ज़्यादा ज़हीन है। लोग कहते थे कि होना हाथी से ज़्यादा ज़हीन है। कोई ये नहीं कहता था कि उसका बेटा भी इन्हीं सफ़ात का हामिल है। हालांकि अम्बाला सारगाना बस्ती के तमाम जवानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर और तंदुरुस्त था, लेकिन बस जिसकी धूम मच जाए उसी के बारे में सोचा जाता है। अम्बाला ने होना को सोते वक्त काबू किया और उसने लकड़ी की छाल से होना के हाथ और पांव बांध दिए और उसके बाद तेज धार के हथियार से उसने अपने बाप की गर्दन के जिस्म से अलहदा कर दी। सबसे पहले वो उसके खून से सैर हुआ और उसके बाद उसने उसके बदन के मुख्तलिफ अज़ा खाने शुरू कर दिए। 11 दिन तक वो अपने झोंपड़े से बाहर नहीं निकल सका। उस झोंपड़े में वो दोनों बाप बेटा ही रहते थे। चूँकि अम्बाला का ना तो कोई भाई था और ना बहन। माँ उस वक़्त मर चुकी थी जब अम्बाला इस दुनिया में आया। चुनाचा बाप बेटा ही ज़िंदगी गुजारते रहे थे और अब अम्बाला ने बड़ी अकीदत के साथ अपने बाप को अपने वजूद में महफूज कर लिया था और लोग उसकी बेपनाह इज्जत किया करते थे। ख्याल ये था कि मुस्तकबल में अम्बाला को शायद देवताओं की नजर अनायत से काहने आज़म बना दिया जाए, क्योंकि वह बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ करता और उसकी पेशगोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त होती थीं। सारगाना तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन था। उन दिनों भी अम्बाला किसी काम से किसी दूसरे कबीले गया था और वहाँ से वापस आ रहा था कि रास्ते में बारिश ने उसे घेर लिया और बस वसे उसके साथ सफ़र करने लगे। लेकिन कहा यह जाता है कि जब कोई दलेर से दलेर इंसान खौफ का शिकार हो जाए तो उसका मकसद है कि खौफ की परछाइयाँ उसका ताक़ुब कर रही हैं। बात बिल्कुल ठीक ही थी, क्योंकि जब अम्बाला मैदानों के सफ़र से गुजरा और उसके पीछे जंगल ख़त्म हो गए तो यकायक एक बड़े टेले के अकब से लकड़ी का नोकधार भाला सनसनाता हुआ आया और जंजनाहट की आवाज़ के साथ अम्बाला की पिंडली को चीरता हुआ उसमें तराजू हो गया। अम्बाला तड़प कर नीचे उतरा और मछली की तरह ज़मीन पर लौटने लगा कि अचानक ही दूसरा भाला उसके शाने में प्युसत हो गया और ये दोनों भाले सारगाना कबीले ही के 2 अफराद ने उसके जिस्म पर मारे थे और उनमें से एक ऐसा था और दूसरा एक तैसा था और दूसरा सलोगा। तैसा बाप था और सलोगा बेटा। बहुत अरसे से ये बाप बेटे अम्बाला की ताक में थे। तैसा की दिली आरजू थी कि सलोगा का काहने आज़म बनाए और उसके पास उसके ज़राए भी थे, क्योंकि मुक़द्दस काहने आज़म बूढ़ा हो चुका था और बहुत जल्द वो तकरीब मुनक्कद होने वाली थी जिसमें नए काहने आज़म का इंतखाब किया जाए और देवताओं की निगाह सीधी होने का फ़ैसला किया जाए। सलोगा काफ़ी ज़हीन और ताकतवर नौजवान था, लेकिन उसका मद्दे मुकाबल अगर कोई था तो वो अम्बाला ही था, जिसके बारे में सारगाना के लोगों का ख्याल था कि वो यकीनी तौर पर काहने आज़म बना दिया जाएगा। और अब इन दोनों ने फैसला किया कि अम्बाला को अपने वजूद में उतार लिया जाए ताकि बची खची सलाहियतें सलोगा के जिस्म में मुंतकिल हो जाएं। उस वक़्त वह पूरा ख़ानदान उसके टेले के पीछे मौजूद था। तैसा, सलोगा, तैसा की बीवी रबोना और उसकी नौजवान बेटी साहा, सारे के सारे यहाँ मौजूद थे। बाप बेटे ने 2 नेज़े अम्बाला को इस तरह मारे थे कि वो ज़मीन बोस हो जाए, लेकिन उन्होंने इंतज़ाम 5 नेज़ों का किया था, क्योंकि वो जानते थे कि अम्बाला ज़रूरत से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। फिर तैसा ने अपनी तमाम तर महारतों के साथ नेज़ा अम्बाला की गर्दन की तरफ फेंका। नेज़ा बेशक अम्बाला की गर्दन से टकराया, लेकिन ज़रा गलत निशाने के साथ अम्बाला उसके नेज़े से बच गया। अलबत्ता सलोगा ने अपने बाप से कहा, मेरे बाप,
तेरे बाजुओं की कमजोरी ने हमारा एक नेजा जाया कर दिया। ये देखो मुस्तकबल का काहने आजम किस तरह अपने हक में फैसला करता है। ये कहकर स्लोगा ने अपना नेजा फेंका तो वह अम्बाला की गर्दन के बीचों बीच प्यूसत हो गया और बस ये काफ़ी था। 5वें नेज़े के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पेश आई। अलबत्ता वो अपने तेज़ धार वाले हथियार लेकर अम्बाला की तरफ दौड़ पड़े ताकि गर्म गर्म उबलते हुए खून को अपने मैदे में उतार सके। अम्बाला की बीवी और बेटी भी उसी तरफ दौड़ने लगे और उसके बाद उन्होंने अम्बाला की मौत का इंतज़ार नहीं किया। वो अपनी लंबी लंबी ज़ुबानें निकालकर उसके बदन से उबलते हुए खून को चाटने लगे और उनके चेहरे खुशियों से भरते जा रहे थे। बहरहाल उन्होंने अपने काम को जारी रखा। ना उन्हें मौसम की फिक्र थी ना हालात की। वो बस अपना मकसद पूरा कर रहे थे। बूढ़े तेसा ने स्लूगा की तरफ देखा और दोनों हाथ उसके सामने कर दिए और उसने बड़ी सफाई के साथ अम्बाला का सीना चीर कर उसका दिल निकाल लिया था। मैं अपने बेटे को ये मुकद्दस तोहफा पेश करके दिल्ली मसरत महसूस कर रहा हूँ। ये तेरी मलकियत है। हालांकि मेरा दिल उस पर ललचा रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे अज़ा कमज़ोर हो चुके हैं। तू मुस्तकबल का कहने आज़म है। ये दिलेरी तुझे मुबारक हो। स्लोगा ने मुस्कुराते हुए बाप का तोहफा कबूल कर लिया और दोनों हाथों से पकड़कर उसे दांतों से उधेड़ने लगा। उसकी बीवी और बेटी अम्बाला के बदन से गोश्त नोच नोच कर शिकम सीरी कर रही थी और उनके चेहरे हाथ पांव सब खून में डूबे हुए थे और अम्बाला का बदन गोश्त से खाली होता जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अम्बाला हैलाज का गहरा दोस्त था और हैलाज सारगाना का सरदार। इस वक्त उसके सामने अम्बाला का नुचा हुआ जिस्म मौजूद था और सामने ही 2 अफराद खड़े उसे बता रहे थे कि ये जिस्म उन्हें कहाँ से दस्तयाब हुआ और उसकी कैफियत क्या थी। उनमें से एक ने कहा कि मुकद्दस हैलाज, ये एक बड़ी सच्चाई है कि अम्बाला को जिस जगह शिकार किया गया वो कबीला 2 बालिया के बाएं सिमत की जगह थी और कबीला 2 बालिया वाले ऐसा तो करते रहते हैं। मैं सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि हम उन्हें कब तक मुआफ़ करते रहेंगे। हैलाज ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके पतले और भूंचे हुए होंठों पर एक बेरहम मुस्कुराहट फैली हुई थी और उसके सामने वाले लोग जानते थे कि उस मुस्कुराहट का मतलब क्या है। हालांकि जो लोग उसे ये इतला दे रहे थे वो बड़े बड़े और लंबे कदो कामत के आदमी थे, जबकि हैलाज दुबला पतला और पिस्ता कद, लेकिन वो इंतहाई शफाक था। उसके महल में बेशुमार कमरे थे जहां चप्पे चप्पे पर चमकती हुई तलवारें लिए नीम बरहना और हट्टे कट्टे सिपाही पहरा दिया करते थे। उसके नज़दीक इंसानी जान की ज़रा बराबर कदर नहीं थी। जिस आसानी से वो चींटी को मसल दिया करता था उससे कहीं ज़्यादा आसानी और सहूलत से किसी इंसान को मरोड़ कर डाल देता और इंसानों को ख़त्म कराना उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। हैलाज के सामने उसके कई आदमियों के सर मामूली मामूली कसूर पर कटवा दिए जाते और यही वजह थी कि हर शख्स उससे खौफजदा रहता और उसके करीब रहने वाले लोगों के सर पर मौत की लटकती तलवार नजर आती थी और उस तलवार को जुम्बश में लाने के लिए हैलाज को एक इशारे की देर होती। उसका मुलाजमे खास माकाजुमा उससे बेपनाह खौफजदा रहता था। हैलाज जब किसी से नाखुश होता तो बड़े मध्यम लहजे में उससे बातें करता और बड़े नरम लहजे में उससे गुफ्तगू करता। इस वक्त भी उसने बहुत सी नरम अंदाज में माकाजुमा से कहा, क्या तुमने उस बेवकूफ़ 2 बाली को कत्ल कर दिया? क्या उसने तुम्हें वो तफसीलात बताई जिसमें मैंने तुम्हें हदायत की थी? मेरे आका, अपने इस गुलाम को खता माफ़ कीजिए। मैंने आपके अहकाम की तामील की, लेकिन उस बेवकूफ़ 2 बाली ने किसी तरह ज़ुबान नहीं खोली। मैंने उसे कत्ल करने के सिवा हर मुमकिन अजियत देकर तमाम रात उगलवाने की शदीद कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मेरे आका, वो नामालूम किसी मिट्टी का बना हुआ है। बड़ी से बड़ी तकलीफ और सदमा वो आसानी से झील लेता है। मैं अपने सारे हरबे आजमा चुका हूँ और वो जुबान नहीं खोलता। हैलाज के होंठों से बरबराहट निकली और उसकी चमकती हुई आंखें मुलाजिम के चेहरे पर जम गईं और फिर उसने बदस्तूर नरम अंदाज में कहा, और तुम मेरे पास अपनी नाकामी के असबाब बयान करने आए हो, जबकि 2 बालिया वालों ने हमारे एक और अहम आदमी को हलाक कर दिया, उस शख्स को जो मेरा दोस्त था और उसका नरम लहजा माकाजुमा के लिए मौत का निशान था। उसकी रूह सिमट कर कलेजे में आ गई और उसे यकीन आ गया कि मौत
اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ ابھی کوئی دم میں ہی حلاج تالی بجائے گا اور ہٹے کٹے جلاد غلام تلواریں لے کر آ جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ گھٹنوں کی بال جھکا اور اس نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنی پیشانی فرش پر ٹکا دی، اور اس کے منہ سے رحم رحم کے الفاظ نکلنے لگے، اور وہ کہنے لگا، میرے عظیم آقا، اس میں کوئی شک نہیں کہ دوبالیہ والوں نے تیری بہت ہی قریبی دوست کو قتل کر کے بڑا ظلم کیا ہے، اور امبالہ کی موت ایسی نہیں ہے کہ اسے آسانی سے بھلا دیا جائے، لیکن مجھ پر رحم کر مجھ پر۔ حلاج نے بائیں جانب رکھی میز سے ایک خوبصورت چاقو اٹھایا جو پھل تراشنے کے کام آتا تھا، اور اس سے کسی آدمی کو ہلاک کرنا ممکن نہیں تھا۔ پھر جب ماکازوما نے نگاہیں اٹھا کر اپنے آقا کی طرف دیکھا تو وہ چاقو سے اپنے ناخن کاٹنے میں مصروف تھا۔ یکا یک اس نے کہا، میں اس مرتبہ تمہاری یہ ناکامی نظر انداز کرتا ہوں، لیکن آئندہ کبھی ایسا نہ ہوگا میرے آقا۔ ماکازوما نے سیدھے کھڑے ہو کر کہا، اور اطمینان کی جھلک اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اب وہ نئے حکم کا منتظر تھا۔ حلاج نے چاقو میز پر رکھ دیا اور اپنی جگہ نیم دراز کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے اس طرح جیسے کوئی خواب کے عالم میں بولتا ہے بولنا شروع کیا، اس کا مطلب ہے کہ دوبالیہ والے کسی بھی قیمت پر جنگ سے باز نہیں رہیں گے۔ ہم ان کی ان کوششوں کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں معلوم کر سکے، لیکن وہ دوبالی ہمارے قبضے میں ہے اور اس کا منہ کھلوانا چاہیے۔ آخر کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس پر عمل کر کے ہم اس کے سینے میں چھپی ہوئی معلومات حاصل کر سکیں۔ معلومات حاصل ہونا ضروری ہے۔ دوبالیہ کی فوجی قوت پتہ چلنی چاہیے، لیکن غلام ناکام ہو چکا ہے۔ اب آقا ہی یہ کام کر سکے گا۔ اور اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کا لہجہ پہلے سے بدلا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا، ماکازوما، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ بہت بہتر۔ ماکازوما سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ حلاج نے جیب سے ریشمی کپڑا نکال کر چہرے پر پھیرا اور کمرے کے شمالی گوشے میں لٹکتے ہوئے خوبصورت نازک سے پنجرے پر نگاہیں جما دیں، جن میں انتہائی حسین ننھے پرندوں کا ایک جوڑا موجود تھا۔ حلاج گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دفتن اس نے اپنے آپ ہی اس انداز میں گردن ہلائی جیسے کسی خاص نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ پھر اس نے لکڑی کا ایک ہتھوڑی اٹھا کر دائیں طرف رکھے ہوئے پیتل کے ایک برتن پر زور سے ماری، اور برتن کی جھنکار دیر تک گونجتی رہی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک بے باز شخص کمرے میں داخل ہو کر 3 دفعہ جھکا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حلاج نے اپنی مخصوص نرم لیکن سرد آواز میں اسے چند ہدایات دیں، جنہیں غور سے سننے کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ماکازوما کمرے میں داخل ہوا اور اپنے آقا کو مؤدبانہ سلام کرنے کے بعد بولا، قیدی حاضر ہے میرے آقا۔ حلاج نے اپنے ہاتھ کی پہلی انگلی کا اشارہ کیا اور اجازت ملنے پر ماکازوما مکروہ لہجے میں چیخا، قیدی کو اندر لے آؤ۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد 2 پہرے دار جن کے ہاتھوں میں چھوٹی ننگی تلواریں تھیں، اپنے درمیان ایک پستہ کامت شخص کو لے کر اندر داخل ہوا۔ یہ دوبالیہ کا باشندہ تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، اور اس کا لباس تار تھا۔ چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں ویران اور اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ داڑھی اور مونچھوں کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، اور اس کی گردن، بازوؤں اور ٹخنوں پر گہرے زخموں کے اور جلائے جانے کے نشانات موجود تھے۔ جب وہ پہرے داروں کی نگرانی میں حلاج کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس کی ٹانگیں تھر تھرا رہی تھیں۔ ہاں عظیم دوبالیہ کے وفادار، کیا حال ہے تیرا؟ حلاج نے بڑی دلچسپی سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر قیدی کی حالت دیکھ کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ قیدی نے کہا کہ تم جانتے ہو میں دوبالیہ کا باشندہ ہوں۔ قبیلہ دوبالیہ تمہیں تمہاری اس حرکت پر کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حلاج، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک تنہا دوبالی کو پکڑ کر اتنے سارے غلاموں کے ذریعے اس پر ظلم و ستم کر کے کامیابی حاصل کر لو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ تم اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ حلاج نے اپنے قریب رکھا ننھا بے ضرر چاقو اٹھایا اور اسے اپنی انگلیوں میں گھماتا رہا۔ پھر اس نے کہا، واہ، کم از کم دوبالیہ والوں کی ایک بات میں دل سے تسلیم کرتا ہوں، وہ یہ کہ وہ ان حالات میں بھی دھمکیاں دے سکتے ہیں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ دوبالی کی کہ تمہیں اپنی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔
मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। तुम अगर ये समझते हो कि दोबालिया के मुकाबले पर आ सकोगे तो अभी तुम्हें उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। एक बात ज़हन नशीन कर लो, अगर मैं वापस दोबालिया नहीं पहुंच सका तो फिर दोबालिया के लोग ये समझ जाएंगे कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, और उसके बाद तुम उनकी यलगार की ताब नहीं ला सकोगे। हैलाज की मुस्कुराहट कैके में बदल गई। बेवकूफ़ आदमी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी ये गलतफहमी दिल से निकाल दो। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तकदीर सारगाना वालों के हक में है और बहुत जल्द उनकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम होने वाला है। दोबालिया की फ़ौजी कुव्वत क्या है? तुम्हारे साथ कितने जंगजू और लड़ाके हैं? बात असल में ये है कि तुम्हारी कार्रवाइयों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। तुम्हारे आदमियों ने हमारे एक और साथी को हड़प कर लिया है और उसके बदले तुम जानते हो कि दोबालिया को क्या सज़ा मिलेगी। मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि मुझे दोबालिया की कुव्वत के बारे में बताओ। तुम पागल हो। अगर तुम दोबालिया की लड़ने वाली कुव्वत से वाकिफ़ नहीं हो तो तुम्हें इस बात का हक नहीं कि तुम सारगाना की सरदारी करो। और इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि अब तुम्हारा वक़्त पूरा हो चुका है। तुम हमारे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकोगे और बहुत जल्द तुम्हारी बेसर की लाश तुम्हारे कबीले के दरवाजे पर लटकती हुई नजर आएगी। हैलाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और फिर गहरा काला, और उसकी छोटी आंखों की पुतलियां फैलने और सिकुड़ने लगीं। आज तक उसकी इतनी तौहीन किसी ने नहीं की थी, लेकिन ये बदबख्त दोबाली सामने खड़े होकर उसे गालियां दे रहा था। हैलाज का दिमाग जल गया और रगों में खून खौलने लगा, और उसने सोचा कि अब इस शख्स को जिंदा छोड़ना बेकार है। ये बदतरीन सज़ा का मुस्तहिक बन चुका है। मुमकिन था कि वो गुस्से की शिद्दत से फौरन जल्लाद को बुलाकर उस शख्स का सर उड़ाने का हुक्म देता, लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने सोचा कि थोड़ी सी तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी है। इस शख्स को अभी मार देना मुनासिब नहीं होगा। चौंका, इससे बहुत सी बातें पूछनी हैं। कम से कम ये पता चलना चाहिए कि दोबालिया की फ़ौजी कुव्वत क्या है। दर हकीकत दोबालिया सारगाना से बड़ा कबीला था और उसकी ताकत महफूज थी। ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था कि उसकी फ़ौजी ताकत की सारगाना के सामने क्या हैसियत हो सकती है। ये शख्स सारी बातें बता सकता है। चुनाचा उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा, बेवकूफ़ आदमी, हमारी दुश्मनी कबीला दोबालिया से है, तुमसे नहीं। क्या समझे? मैं तुम्हें ज़िंदगी ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ देने को तैयार हूँ। तुम सिर्फ इतना करो कि मुझे दोबालिया के बारे में तफसील बता दो। क्या समझे? लेकिन दोबालिया का वफादार इस कदर गलत आदमी नहीं था, और उसने पूरी कुव्वत से सारगाना कबीले के सरदार के मुंह पर थूक दिया और गुराई हुई आवाज़ में बोला, हैलाज कुत्ते, और तुझे खुद भी अपनी मौत सामने नजर आ रही है। मैं चश्मे तसव्वुर से तेरा कटा हुआ सर तेरे कबीले के दरवाजे पर लटका देख रहा हूँ, और तूने जिस कदर तशद्दुद मुझ पर कराया है वो तेरे किसी काम नहीं आ सका। मैं दावे से कहता हूँ कि तू कुत्ते की मौत मारा जाएगा। क्या समझता है तू मुझे? मैं दोबाली हूँ। हम लोग बिकने वाले नहीं होते, और वो भी तुझ जैसे शैतान के हाथों। अब हैलाज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो घुराई हुई आवाज में बोला, ओ कुत्ते दोबाली। ये कहते हुए वो खड़ा हो गया और उसने रुमाल से थूक की छींटें अपने चेहरे से साफ की, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत भी बेदार हो रही थी। ये खौफ उसके दिल में जागुज़ीन था कि यह कैदी किस कदर दलेर है। ये देख रहा है कि जल्लाद का छुरा उसके सर पर लटक रहा है। मौत का खूनी पंजा किसी वक्त भी उसे अपनी गिरफ्त में ले सकता है और इसके जिस्म की बोटी बोटी की जा सकती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। अगर दोबाली इतने ही दलेर हैं तो क्या मेरा कबीला उनसे जंग कर सकेगा? और उसने आंखें बंद कर लीं और गहरी सोच में डूब गया। उसके दाएं बाएं वो दोनों मुहाफ़िज़ बेहसो हरकत खड़े हुए थे और शिद्दते हैरत से पत्थर हो गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बदज़बानी के बावजूद उनके आका ने उस शख्स को अब तक क्यों जिंदा छोड़ रखा है। हो सकता है कि वो उसके लिए कोई और भयानक सजा सोच रहा हो, और उनका ये ख्याल बिल्कुल ठीक था। हैलाज इस दोबाली के सीने से राज उगलवाने के लिए दिमाग लड़ा रहा था, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी था। जब तक उसे दोबालियों के बारे में मालूम ना हो जाए सारी कार्रवाई बेकार है। दफतन ही वो हंस पड़ा और पहरेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो ये समझने लगे कि शायद गुस्से की शिद्दत ने उस शख्स को दीवाना कर दिया है।
इधर दोबालिया का जवान भी ताज्जुब भरी निगाहों से हैलाज को देख रहा था। वो उस दरिंदा सिफ्त शख्स के चेहरे के उतार चढ़ाव से उसकी अंदरूनी एहसासात को जानना चाह रहा था। इतना तो वो जानता था कि हैलाज उसे अभी हलाक नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये बात मालूम है कि दोबाली जंग के लिए तैयार खड़े हुए हैं। बहरहाल अब जो कुछ भी होगा सामने आ ही जाएगा। दफतनी हैलाज की आवाज़ उभरी, हाँ तो तू बता कि दोबालियों की कुव्वत क्या है। ये कहकर उसने दोबाली की तरफ देखना शुरू कर दिया और उसकी सर्द आंखें, जिनकी चमक पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी, बिल्कुल ऐसे लग रही थीं जैसे किसी तारीक रात में किसी सनसान जंगल के अंदर दो मशालें रोशन हों। वो उसे देखता रहा। दोबाली ने फिर कहा, बेहतर ये होगा कि तू दोबालियों के सामने घुटने टेक दे और उनसे अपने लिए पनाह मांग ले। हकीकत यह है कि तू मुझे पागल मालूम होता है, वरना मुझसे इस कदर बदतमीजी ना करता। ये जानकर के तुझे इस बदतमीजी की सजा मिलेगी। मैं तुझे बता चुका हूं कि अब तेरा सर तेरे शानों से जुदा होने को तैयार है। पागल, तुझे मेरे सर के बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। ये सर इतने अरसे से मेरे शानों पर रखा हुआ है और उसे आज तक मामूली सी खराश भी नहीं आ सकी। ये आइंदा भी मेरे कंधों पर मौजूद रहेगा। अलबत्ता मुझे तुम्हारा सर इन पैरों में ठोकरें खाता नजर आ रहा है। उसने अपने पैरों को उसी अंदाज में जुम्बश दी जैसे वाकई किसी के सर पर ठोकरें मार रहा हो। ठीक है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ तो क्या फैसला किया? मुझे इस बात का जवाब दो, जुबान खोलते हो या नहीं। तुम पागल हो और किसी पागल की बात का जवाब मैं नहीं देना चाहता। जवाब दोगे मेरे दोस्त, और जरूर दोगे, हैलाज ने कहा। और उसके बाद उसने माका जुमा को आवाज दी। माका जुमा पलक झपकते उसके सामने पहुंच गया। कुछ और आदमियों को बुलवाओ, हैलाज ने हुक्म दिया और माका जुमा सर झुकाकर बाहर निकल गया। कुछ लम्हों के बाद 4 सिपाही कमरे में दाखिल होकर हैलाज के सामने मुअद्दबाना अंदाज में खड़े हो गए। इस कैदी को अपनी गिरफ्त में ले लो, जुम्बश ना होने पाए, हैलाज ने कहा। और आने वालों ने फौरन उसकी तामील की। 2 झुके और दोबाली की टांगों को सख्ती से पकड़ लिया। तीसरे ने उसकी कमर पकड़ी और चौथा करीब ही हाथ में एक मजबूत डंडा पकड़कर खड़ा हो गया। पहले से मौजूद दोनों सिपाही उसी तरह अपनी जगह खड़े रहे थे। उन्होंने कोई हरकत नहीं की। उधर दोबाली को महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म का बंद बंद लोहे के शिकंजों में जकड़ दिया गया हो। मुमकिन है आम हालात में वो इन सिपाहियों से अपनी बचत के लिए मुकाबला करने की कोशिश करता, लेकिन उस पर जो मुसलसल मजालिम हुए थे और जिस तरह से भूखा प्यासा रखा गया था, उसकी वजह से उसकी कुव्वत मदाफत इस वक्त ना होने के बराबर थी। वो बेबसी से अपने काबू में करने वालों के बस में आ गया था। ये लोग यकीनन उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ डालते और उसकी हालत एक बेबस और मजबूर चिड़िया की सी थी। वो सोच रहा था कि देखो अब क्या होता है। उधर हैलाज मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कुराहट में एक फातहाना जज्बा छुपा हुआ था। एक बार फिर उसने लकड़ी की हथौड़ी से धात के बर्तन पर ज़रब लगाई और कमरे के मशरकी हिस्से से एक बंद दरवाज़ा खुलने लगा। पर्दे में जुम्बश में आए और उसके बाद एक शख्स निकल कर बाहर आ गया। हमारे पास दोबालिया की एक लड़की भी मौजूद थी। क्या नाम था उसका? उसका गालबन सुला नाम था उसका। हाँ जी माका जुमा ने जवाब दिया। बहुत खूबसूरत थी वो लड़की, लेकर आओ उसे। दोबालिया हैरत से उछल पड़ा और उसके भाई की बेटी थी और उसको खास अरसे पहले अगवा कर लिया गया था। उस वक्त दोबाली को यह नहीं मालूम था कि 16 अगवा होकर कबीले से बाहर निकल आई है। वो बहुत खूबसूरत थी और उसके बारे में यही शुबा था कि किसी दोबालिया ने ही उसे अपनी कैद में रखा हुआ है। लेकिन इस वक्त 16 का नाम सुनकर कैदी दोबाली हैरत से उछल पड़ा था। माका जुमा अपने आका का इशारा पाकर उस पर्दे के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया और कुछ लम्हों के बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ एक औरत भी थी। दोबाली के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई, आह 16 तुम यहाँ कैसे आ गई? वो दीवाना वार सिपाहियों के शिकंजे से आज़ाद होने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे अपने आहनी बाजू में मजीद जकड़ लिया और फिर दोबाली हैलाज की तरफ मतवज्जा होकर बोला, हैलाज कुत्ते, तू अपने आप को कबीले का सरदार समझता है। मैं तो गमज़दा हूँ इस कबीले के लिए जिसका सरदार तुझ जैसा आदमी है। लेकिन एक बात सुन, मुकद्दस देवताओं की कसम, अगर उस लड़की का बाल भी बीका हुआ
तो मैं तुझे आग के अंगारों पर भून डालूंगा। ये लड़की ये यहाँ कहाँ से आ गई? दोबाली का ज़हन मसरूफ़ होने लगा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नौजवान और खूबसूरत लड़की एक हकीकत की मानद उसके सामने खड़ी थी। उसका खूबसूरत और मासूम चेहरा गम की तस्वीर बना हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में खौफ और आंसू नुमायां थे और उसके स्याह और चमकीले बाल बेतरतीब और बिखरे हुए थे। ऐसे लगता था जैसे उसके साथ भी बड़ी ज़बरदस्तियां की गई थीं। दोबाली ने उसकी तरफ रुख करके कहा, मेरी जान, मेरी बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? सोला ने उसकी तरफ देखा और उसके होंठ लर्ज कर रह गए। दहशत के मारे उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। उधर हैलात के चेहरे पर खबासत झलक रही थी और उसने पहले सोला को देखा और फिर दोबाली की तरफ और उसके बाद वो हंस कर बोला,